हरे कृष्णा। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे। So we will begin with the sixth session of your aspiring Charanashrayam. You belong to a group called Upasaka. Your next exam will be called Charanashraya, and therefore you're also called aspiring Charanashraya. So for uniformity, we will continue to call this group as aspiring Charanashraya. So today, um, without losing time, I'll immediately begin the session. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. So today we're going to discuss about the six things that enhance bhakti. First of all, we're going to discuss what is bhakti. Bhakti क्या है? How do we adopt the six principles of surrender? शरणागति के छह प्रिंसिपल्स को हम कैसे अपने जीवन में लेके आ सकते हैं? Accepting principles that enhance bhakti, जो पहला कदम है, तो जो भक्ति का वर्धन करता है, वो छह जो प्रिंसिपल्स है उसको कैसे हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं. So we'll discuss about उत्साह, that is enthusiasm, निश्चय is determination, धैर्य is patience. तो उत्साह मतलब of course it directly Hindi meaning translations comes, so no need for me to tell the Hindi word. उत्साह, निश्चय, धैर्य being patient, तत्त कर्म प्रवर्तना acting according to regulative principles, नियम नियम का पालन करना, संग त्यागा abandoning the association of non devotees, अभक्तों के संग न रहना, शत्रु वृत्ति है फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्यस, तो हमारे आचार्य गण के दिखाए हुए मार्ग में चलना. सो वन बाय वन विल डिस्कस. पहले व्हाट इज भक्ति. भक्ति का मतलब क्या है? तो भक्ति, there is a definition for bhakti and there is a definition for uttama bhakti. So definition of bhakti is it ends with bhaktir uchyate. It is called bhakti. And there is a definition for higher bhakti, the topmost type of bhakti. So that ends with bhaktir uttama. So what is this bhakti? Bhakti का मतलब क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तः, सो तत्परत्वेन निर्मलम, ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते. So these are the ingredients of bhakti. क्या है? Engage all senses in service of the Lord. ऋषिकेश सेवनम. Then क्योंकि the specific word ऋषिकेश is used here. ऋषिकेश is master of senses. ऋषिकेन through the senses. And the spiritful soul renders service to the supreme. There are two side effects. तो भगवत भक्ति में जब हम आते हैं तो उसमें दो परिणाम होता है. वन इज फ्रीड फ्रॉम मटेरियल डेसिग्नेशंस. सारे भौतिक उपाधियों से वो मुक्त हो जाता है. एंड आवर सेंसेस आर प्यूरिफाइड. तत्परत्वेन निर्मलम. तो क्यों ऐसे होता है? बिकॉज इज एम्प्लॉइंग इट इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. ऋषिकेश सेवन. जब हमारे इंद्रियों को हम भक्ति में उपयोग करेंगे तो
वो निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और सारे उपाधियों से हम मुक्त हो जाएंगे। वी विल नॉट बी बिहाइंड डेसिग्नेशंस। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। व्हाट इज प्योर डिवोशनल सर्विस? उत्तम भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति क्या है? अन्याभिलाषित शून्यम, one renders transcendental loving service to Supreme Lord favorably. Anukulena Krishnanushīlanam. Whatever is possible, I am utilizing it for Krishna. So then, and without desire for material profit or gain, Anya Abhilashita Shunya, और कोई इच्छा नहीं है, और gain through fruitive activities or philosophical speculation, ज्ञान और कर्म से आवृत्त नहीं है। ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान और कर्म से वो मुक्त हो चुका है। मतलब he is not simply basing his devotional service on jnana and karma. He is basing it on anukulyena krishnanushilanam and anyabhilashita shunyam. This is top-notch devotional service. This is pure devotional service. So you should know the two definitions. So Charnashra, especially in your interviews, they are going to ask these definitions. So Charnashra, you have to prepare for your aspiring Charnashra exam. Was prepare very, very seriously, like a student of a school. तो जो भी पीडीएफ्स मैंने पोस्ट किया है, सारी पीडीएफ्स तो अभी मैंने पोस्ट कर दिया है, तो आपको आगे वाला पीडीएफ्स को इन एडवांस पढ़ना है, ताकि जब क्लास होगा तो आपको समझ में पूरा आएगा, और जो पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं उसका आपको रिवीजन करना। मस्ट रिवाइज दोस पीडीएफ्स। अडॉप्टिंग द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ सरेंडर, पहले भक्ति का अभिवृद्धि वो बाद में करेंगे, भक्ति में शरणागति कैसे हम करेंगे। व्हाट आर द 6 प्रिंसिपल्स? So the 6 principles are that which is favorable, that is accepted. Anukulena sankalpa, accepted things favorable for devotional service. भक्ति में जो उचित है उसको अपनाना। प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, rejecting things unfavorable for devotional service, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको वर्जन करना, उससे दूर रहना। Believing firmly in the Lord's protection, रक्षिष्यति इति विश्वासा, ये विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर कि हमारा रक्षण, क्योंकि हम कृष्णा के शरण में गए हैं, कृष्णा खुद करेगा। फीलिंग एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट ऑन मर्सी ऑफ लॉर्ड फॉर वंस मेंटेनेंस, तो मेरा मेंटेनर कौन है? गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदासा। So Gotrupta Varanam. So I am satisfied and I am completely dependent, and I am completely okay to be dependent on Krishna, fully dependent on Krishna. पूरी तरह कृष्णा के ऊपर अवलंबित होना, having no separate interest from that of the Lord. भगवान का जो भक्ति है केवल वही मेरा आसक्ति है, और कोई आसक्ति नहीं है। Always feeling meek and humble, कार्पण्य, तो अपने आप को वेरी दैन्य समझना, ये भक्त का लक्षण है। एंड दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सरेंडर। जो अपने आप को हम्बल, ह्यूमिलिटी नहीं रखता, वन हु डज नॉट हैव ह्यूमिलिटी कैनॉट सरेंडर टू द लॉर्ड। भगवान के शरणागत शरणा भगवान के शरण में वो नहीं आ सकता। सो इन शरणागति, इन द सरेंडर प्रोसेस देयर आर 6 थिंग्स। तो क्या रिकैप? अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। देन इवन इन प्रीवियस श्लोक भक्तिरुत्तमा अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, that which is favorable for bhakti, that is being accepted. So first class bhakti means this: accepting things that are favorable, rejecting things that are unfavorable for Krishna consciousness. So that should be the principle. प्रभु मैं ये काम करूं कि नहीं, तो यू मस्ट अप्लाई द प्रिंसिपल। ये करने से मेरा भक्ति में, मेरे शरणागत में मुझे फायदा मिलेगा, मेरे भक्ति में मैं आगे जा सकता हूँ, वो हमें करना है।
जिससे हमारा भक्ति स्थगित हो जाता है या हम दो कदम पीछे चले जाते हैं, उसको नहीं करना। सिंपल प्रिंसिपल टू अप्लाई। सो चांदी से प्रभुपाद जी बोलते हैं 16 माला जपा करना है तो तुरंत हमें करना प्रारंभ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ प्रभु जी चरणाश्रय तक लेके जा रहे हैं स्टेप वाइज, तो मैं जब चरणाश्रय एंटर करूंगा तब मैं ये सब करूंगा या करूंगी। नो, यू मस्ट बी इंटेलिजेंट। कृष्ण से भजे हुए बड़ा चतुर, वन हु इज devotee of Krishna is very intelligent. Why should he wait for a future time when he can pick up his mala and do 16 rounds today? That is, and he knows that by doing that, Lord will give me protection against Maya. तो जिस दिन हमने 16 माला कंप्लीट किया उस वक्त से पूरे दिन माया हमारे ऊपर हावी नहीं होता। तो दिस फुल फेथ, विश्वास, एक्सेप्टिंग प्रिंसिपल्स दैट एनहांस भक्ति इज द फर्स्ट स्टेप। तो अ, भक्ति में आने के लिए जो पहला 6 रिक्वायरमेंट्स है हमने अ, अ, पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे भक्ति का अभिवृद्धि होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो गोप्तुत्व वारणम, अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य वर्णम वर्णनम, रक्षिष्यति सॉरी प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वास, गोप्तुत्व वारणम। So all this we have taken. Then now I have come into bhakti. I must now progress in bhakti rapidly. So Rupa Goswami says there are 6 principles that enhance devotional service. तो पहला क्या है? उत्साह, दूसरा निश्चय, तीसरा धैर्य, चौथा तत्त कर्म प्रवर्तना, पांचवा संग त्याग, छठा सत्व वृत्ति, तो षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो ये 6 कार्य या प्रवृत्तियों को अपनाने से भक्ति में हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो बीइंग एंथुसियास्टिक, endeavoring with confidence, being patient, acting according to regulative principles, abandoning association of non-devotees, and following footsteps of Acharya. So the goal of bhakti is to become free from material designations. So sarva upadi vinirmukta. Bhakti means engaging all our senses in the service of master of senses. Rishikena Rishikesha Sevanam. Senses to be purified by engaging in the service of the Lord. तो ऋषि के ना सेवनम करने से हमारा ऋषि का शुद्ध हो जाएगा. Senses will become purified. First step of surrender is to be enthusiastic. So first step to rapidly progress in bhakti is actually enthusiasm. First step of surrender is not enthusiasm. A true or false statement. So, of course, goal of bhakti mainly is Krishna's pleasure, and the first step of surrender is anukulyasya sankalpa. So here the statement is false, true or false statement. So the first step of surrender is to be enthusiastic, is false. The first step, the first thing required for enhancement of my bhakti, that is enthusiasm. So उत्साह, उत्साह मतलब क्या है? हिंदी का पद भी उत्साह है. एंडिवरिंग विद इंटेलिजेंस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, पुटिंग ऑल माय एनर्जी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये उत्साह है. विदाउट एंथुसियाज्म नथिंग कैन हैपन इन दिस वर्ल्ड. ये बाइबल का भी स्टेटमेंट है. एंड मेनी पॉजिटिव थिंकिंग एक्सपर्ट्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, उनके प्रिंसिपल्स में एंथुसियाज्म जरूर रहेगा. Each person has got his set of principles, but the common principle everywhere is enthusiasm. क्योंकि enthusiasm नहीं है तो उत्साह नहीं है, तो there is no fuel for progressing. So in this life, in this human form of life, I must complete my spiritual consciousness. ये उत्साह है. इसी जीवन में मुझे मेरे मानव जीवन का जो परिपूर्णता है मुझे पाना है. So just like a man is very enthusiastic, एक कर्मी, मुझे $10 मिलियन बनाना है, मुझे $10 मिलियन का सेविंग चाहिए,
तो गोल्स सेटअप करता है, फिर वो पागल की तरह नूनम प्रमत्ते कुरुता विकर्मा, तो विकर्म करते जाएगा, पागल की तरह काम करेगा, तो लेकिन वो भौतिक वस्तुओं के लिए कर रहा है। यही पागलपन हम यदि कृष्णा के लिए दिखाएंगे, नो एंथुजियाज्म। सो इंपॉर्टेंस ऑफ एंथुजियाज्म, इट मस्ट बी मेंटेन्ड अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। हर वक्त हमें उत्साह उत्साह प्रोत्साहन रहना है हमारे अंदर। दिस इज आवर प्राइस फॉर एंटरिंग इनटू कृष्णास किंगडम। मतलब हमें हमेशा एक टांग के ऊपर रहना है। मुझे कृष्णा को मिलना है, मुझे गोलोक धाम वापस जाना है, मुझे कृष्णा का सेवा अभी भी करना है, और धाम जाने के बाद वहां पे भी शाश्वत रूप से करना है। एंड माया इज ऑलवेज ट्राइंग टू मेक टेक अवे आवर एंथुसियाज्म। माया क्या करती है, हमारे जो उत्साह है उसको क्षीण करने की कोशिश करती है। शी ब्रिंग दुख, दारिद्र्य, पेन, सफरिंग इन अवर लाइफ। डिवोटी शुड नॉट गेट डिस्टर्ब। विचलित नहीं होना है भक्त को, कृष्ण के पैर को धड़ से पकड़ना है, शरणागत होके रहना है। दैट इज रक्षिष्यति इति विश्वास। A devotee knows whatever is happening in his life is sanctioned by Krishna. Now, if he wants this dukkha to come in my life right now, it is because there is something good for me in this. Krishna has ordained it, so I'll accept it. So Krishna devotees are guided by Krishna, and non-devotees of Krishna are guided by karma. So just like a boy is going to school and there is no enthusiasm, रो रहा है स्कूल जाने के लिए, तो और एक बच्चा स्कूल जाने के लिए बहुत ही उत्साहित है, तो आपको क्या लगता है कौन अच्छा मार्क्स नंबर लेके आएगा, कौन क्लासरूम में अटेंशन से सुनेगा? आंसर आंसर सब ऑब्वियसली हम सबको पता है। तो धैर्य, धैर्य का मतलब क्या है? पेशेंस, धैर्य रखना। मतलब हमें वी हैव टू बी पेशेंट इन नेचर। तो we must hope for good times always. There may be so many obstacles in prosecuting our spiritual life, but we must patiently go forward. कदम कदम पे अड़चने आते हैं। कभी एक बालक के पेरेंट्स मना करते हैं, कभी पेरेंट्स को बच्चे मना करते हैं, कभी पत्नी पति को मना करती है, कभी पति पत्नी को मना करती है। ये सारे एग्जाम्पल्स हम जानते हैं। तो इसके बावजूद एक कृष्ण भक्त को कृष्ण भक्ति में रहना है। When you enter into devotional service, भक्ति मार्ग में जब हम आते हैं, तो इमीडिएटली आई बिकम कृष्णा कॉन्शियस एंड परफेक्ट। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं आज भक्ति में आ गया और कल से मैं शुद्ध भक्त बन गया। वो तब वो हो सकता है, देयर मे बी एग्जांपल्स, पुरंदर दासा, कनकदासा, like this they became devotees. That was by the mercy of the Lord, and they had some sukruti that was waiting for this to happen. Prayers of the parents also played a big role in their lives. But जो कितने सारी कमियां हो सकती हैं हमारे भक्ति में, और जिस जगह पे हम भक्ति का साधन कर रहे हैं वहां पे बहुत सारे पॉलिटिक्स हो सकता है। भक्त दूसरे भक्त को खींच रहे हैं। तो ये क्योंकि भौतिक जगत में हम रहते हैं, थोड़ा बहुत वहां का प्रवृत्ति रहता है, तो इससे कुंठित नहीं होना है। और हमें हमारे भक्ति का प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। द रेस्ट में द रिजल्ट में भी डीलेड बट वी मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब। ये सब देखिए, ये सारे जो कहावत है, अच्छे अच्छे कहावत कहाँ से आया? हमारे शास्त्रों से आया है। भगवान की घर में देर है अंधेर नहीं। रिजल्ट में भी delayed but we should not be disturbed. Must go on working with enthusiasm and patience. धैर्य रखना है और उत्साह से हमारा भक्ति का हमें साधना करना है। तो जैसे कि एक वधु, नवविवाहित वधु, अ, उसको बच्चा चाहिए, लेकिन वो पति को बोल रही है मुझे कल ही बच्चा चाहिए। क्या ऐसे हो सकता है? तो एंथुजियाज्म सही है, लेकिन उसको पता भी होना चाहिए कि 9 महीने लगेंगे कम से कम, तो कल ही चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। So that patience is required, and that what has to be done has to be done. Those things have to be done.
So then only result is possible. So one should not be impatient in Krishna consciousness. Krishna consciousness में अधीरा नहीं होना है. So in this Krishna consciousness movement was started single-handedly, and in the beginning there was no response. Prabhupada जी बोलते हैं मैं विदेश गया, वहां पे 1 साल के लिए तो मुझे कुछ मतलब रास्ता ही नहीं दिखा कि कैसे मैं ये म्लेच्छों को, यावनों को कैसे मैं भक्ति में लेके आऊंगा. फिर उन्होंने टॉम्किंसन स्क्वायर में कीर्तन करना प्रारंभ किया. धीरे धीरे लोग आए, दुरस्त आए, बहुत सारे लोग आए. फिर उन्होंने 1966 1 साल जाने के बाद इस्कॉन का इनकॉर्पोरेशन कर दिया न्यूयॉर्क में. एक सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करा दिया. द मास्टर माइंड ऑफ कृष्णा ऑफ Srila Prabhupada. First he registered a society, then he opened up branches, then he said each branch is independent in its execution. Every branch should get registered separately, and every branch should raise their own funds, have their own devotees, and have their own devotional program. ऐसा नहीं कि न्यूयॉर्क वाले आके लॉस एंजलिस में करेंगे और लॉस एंजलिस का पैसा मॉन्ट्रियल में डालेंगे. मॉन्ट्रियल को अगर ये मंदिर चाहिए भक्तों को, तो उनको अपना फंड्स रेज करना है, अपने भक्तों को इकट्ठा करना है, और अपना साधना और सेवा का जो कैलेंडर है उनको बनाना. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पेशेंस? सो पेशेंस से हमें मतलब एक दो गुण आता है. वन इज वी बिकम टॉलरेंट इन आवर अप्रोच. सेकेंडली वी आर कंप्लीटली बीइंग डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड. जब आना है, कब आना है, वो भगवान को पता है. So you should take instructions from spiritual master and execute them with patience. प्रभुपाद ने बोला है 16 माला जपा करो, फिर कल्याण होगा. 16 माला जपा करने के बाद फिर हमें बोलना नहीं है हो गया, अब कल्याण कहाँ है, कल्याण कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है. That's not the way. So you must be completely dependent on mercy of Guru and Krishna and completely surrender to them, knowing that they know what to give, when to give. जो मुझे चाहिए मैं पूछ सकता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे वेट करना चाहिए. बच्चे को खाना चाहिए, माँ को बोल दिया है तो माँ देगी. माँ को पता है अभी कि आप भूखे हो, तो वो अपना थोड़ा जो काम वाम है निपटा के आ जाएगी. अगर आप वहां जाके बैठे रहे अभी चाहिए अभी उठो, तो ऐसा नहीं है. सो निश्चय चाहे डिटर्मिनेशन, तो उत्साह है लेकिन डिटर्मिनेशन नहीं है. मतलब हाँ ये करना है करना है करना है करना है, लेकिन दूसरा दिन मतलब जब वो उठ के लाइक somebody going to the gym, पहला दिन उठा पूरा एंथुजियाज्म से, वो जिम से 10-10 किलो उठाया, हाथ पैर दुखाया. दूसरा दिन नहीं गया. नो डिटर्मिनेशन. फिर वो तीसरे दिन जाके फिर कर रहा है और देख रहा है दर्पण को, अरे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. नो पेशेंस. 2 दिन में आप अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बनना चाहते हो, ऐसा नहीं होता. So determination means continuing to practice Krishna's consciousness with patience and perseverance. तो धैर्य के साथ मुझे कदम कदम बढ़ाना है. So one has to continue. So I'm not getting desired result. What is Krishna consciousness? इतने साल मैंने चैंटिंग किया, कुछ फर्क नहीं हो रहा है. तो ये चैंटिंग के दोष नहीं है, ये भौतिक हमारा दोष होता है. So Krishna is, because Krishna is saying this it must happen, क्योंकि हमें पता है कि कृष्णा बोल रहा है कि ये करना है तो हमें करना है. तो जैसे कि गरुड़ और जो स्पैरो था, स्पैरो के अंडे समुद्र तट पे रख दिया था और समुद्र का एक लय आया और अंडों को लेके चला गया. और स्पैरो बेग कर रही है समुद्र देव से, मेरा अंडे वापस दे दो, मेरा अंडे वापस दे दो. फिर वो गुस्सा हो जाती है. द स्पैरो बिकम्स एंग्री. He said, if you don't give me my eggs back, my children back, I will empty all the water. मैं आपके सागर के सारी पानी को खाली कर दूंगा. और सागर का राजा हंस रहा है, और वो स्पैरो प्रारंभ भी करता है अपने चोंच से. कितना बड़ा चोंच है उसका, चोंच से पानी यहाँ से लेके
इधर डाल रहा है, इधर इधर डाल रहा है। तो with enthusiasm, with determination, with pay, with a lot of conviction, Sparrow is doing. Seeing the conviction, गरुड़ देव देखते हैं, अरे ये तो मेरी बहन है, बर्ड है, मेरी बहन है। तो लगता है कुछ गड़बड़ है, तो वो जाके देखता है, सिचुएशन समझ में आता है गरुड़ देव को। फिर वो समुद्र राजा को बोलता है, देखो ये मेरी बहन है, आप इनके अंडे वापस दे दो, वरना वो जो काम कर रही है ना, उसमें फिर मुझे लगना पड़ेगा। गरुड़ देव तो भगवान का वाहन है, वो समुद्र को खाली कर सकता है, ड्राई कर सकता है। सो गरुड़ देव की कृपा से उस स्पैरो को अपने अंडे मिल गया, और स्पैरो बहुत खुश थी। सो यू सी, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves through some devotee, through some means. Krishna will send help. What is the importance of this determination? uh, so sometimes the practices may seem very difficult. क्या है, सुबह जल्दी उठना है, मंगला आरती जाना है, अरे 2-3 घंटे आराम से सोते हैं, फिर मुझे पूरा दिन व्यस्त रहना है, तो मैं कैसे काम करूंगा? दैट इज नॉट डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन चाहे कुछ भी हो, मैं अपना आध्यात्मिक कार्य में कोई बाधा आने नहीं दूंगा। सो व्हेन वी आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, और परफेक्शन इज गारंटीड, परिपूर्णता का गारंटी है, जब तक आप कृष्णा कॉन्शियसनेस पथ पे चल रहे हैं। रुक भी गए तो ठीक है, लेकिन पथ को छोड़ के नहीं जाना। रुक गए, कहीं पे रेस्ट ले लिया, ठीक है, बट उस पथ से दूर नहीं जाना है। दूर जाएंगे तो गड़बड़। और रेस्ट भी जितना शारीरिक और मानसिक व्हाट इज दैट रिजुविनेशन के लिए चाहिए, उतना करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 कदम चले और 2 घंटे सो गए। दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, देन देयर इज नो डिटर्मिनेशन। सो पेशेंस, डिटर्मिनेशन एंड enthusiasm. So impatience is due to lack loss of determination. तो एक दूसरे से अवलंबित है। जब निश्चय नहीं है तो धैर्य नहीं रहेगा, जब धैर्य नहीं है तो निश्चय रहेगा, जब निश्चय नहीं है तो उत्साह नहीं रहेगा, और जब उत्साह नहीं है तो निश्चय नहीं रहेगा। बहुत मतलब लंबे समय तक नहीं रहेगा। प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं, लॉस ऑफ डिटर्मिनेशन इज ड्यू टू एक्सेसिव सेक्स। जो लैंगिक क्रिया में मतलब अति मात्रा में प्रवृत्ति करता है, कार्य मतलब निरत हो जाता है उसमें, तो उसका जो डिटर्मिनेशन है वो क्षीण हो जाता है। सो वांट बिकम वेरी डिटरमाइंड and progress in spiritual life, then we must not in this not engage in unnecessary sex. तो जो मतलब अनुपयोगी लैंगिक क्रिया में हमें नहीं पड़ना है। अनुपयोगी मतलब लैंगिक क्रिया किस लिए करना है? कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड को पाने के लिए, टू गेट अ कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड। इफ दैट इज नॉट व्हाट इज टू बी डन, देन फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन इट शुड नॉट बी टेकन अप even between married couple. So, and okay, how Prabhuji, how will follow this? Maya is having, Maya is very strong. एक शैकल जैसा है, मुझे बांध के रखा है। तो आप बोल रहे हो पत्नी के साथ भी लैंगिक क्रिया में नहीं उलझना है, कैसे होगा? अगर आप डिटरमाइंड हो, अगर आप एंथुजियास्टिक हो, तो वो शक्ति भगवान आपको देगा। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कैसे होगा। जो कर जिसके लिए आप कर रहे हो वो भगवान है, ब्रह्मांड नायका है, तो उसको करने की शक्ति भगवान खुद देगा। फ्रॉम आवर साइड सम effort is required, human effort, unless there is divine intervention, nothing we can do। एक सिंपल सा कार्य भी हम नहीं कर सकते। अर्जुन पूरा युद्ध करके पांडवों को जिता दिया भगवान की कृपा से, और जब भगवान द्वारका से फिर वो अपना लीला को समाप्त करके वापस चले गए गोलोक धाम, तब अर्जुन देख रहा था कि अ, जो द्वारका के निवासी हैं, उनके वहां के जो कुछ बचे कुचे लोग थे उस राज्य में, जो भगवान के धाम नहीं चले गए, तो उनके औरतों को कोई लोग छेड़ रहे हैं और वर्ण संकर कर रहे हैं।
and Arjuna is not able to fight. They are easily defeating him, those miscreants. तो वो सोच रहा है ये मैं वही हूँ. I am the same Arjuna. I am having the same Gandiva in my hand. I am having all the skills. But आज मैं तो हार गया बुरी तरह से, वो भी इन मतलब कुछ गुंडों से, कुछ डकाइतों से, कुछ भ्रष्टाचारियों से, कुछ बलात्कारियों से मैं हार गया. ये कैसे हुआ? फिर वो सोचता है उस वक्त कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान मेरे साथ थे, इसलिए मैंने जीता. आज भगवान नहीं है मेरे साथ, तो इसलिए मैंने इतना मतलब so soon I got defeated. So again, fill in the blanks, question answers. Please do these exercises. तत्त कर्म प्रवर्तना, जो कार्य करना है वो करना है. सुबह जल्दी उठना है, मंगल आरती में अटेंडेंस देना है, फिर जपा करना है, फिर गुरु पूजा अटेंड करना है, फिर भागवतम क्लास सुनना है, फिर हमें प्रोपाल के बुक्स पढ़ना है. तो 4 घंटे का प्रोग्राम है, तो 2 घंटे का साधना चैंटिंग, 1 घंटे का रीडिंग, 1 घंटे का हियरिंग, फिर मंगल आरती का अटेंडेंस, गुरु पूजा का अटेंडेंस, फिर पूरा दिन हरे कृष्णा को जपा करते करते अपना काम करना. वहां मनुष्य यद्यचा, कृष्णा को याद करते करते हम अपने कार्य में मतलब निरत रहना है. सो दैट इज तत्त कर्म प्रवर्तना. सो जो कार्य करना है उसको करना ही है, नो मिसिंग. So what is the importance? So a drop and drop and drop makes up an ocean. So on a daily basis, when we keep doing what we have to do, then we will be able to build up this ocean of sadhana. फिर और कुछ कार्य नहीं करना है, वो भी तत्त कर्म प्रवर्तना. नो illicit sex, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग. तो ये भी एक तरह का नियम है, ये भी नियम है, ये भी तत्त कर्म प्रवर्तनात् है. सो यम नियम सब हमें पालन करना है. फिर संग त्याग, फिर जो अभक्त है उनके साथ नहीं रहना है. तो वी मस्ट नॉट एसोसिएट अबैंडन द एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज. ऐसा नहीं कि आप फिर मतलब आपके अपार्टमेंट में आप रह रहे हो, सबको छोड़ दिया आपने, ऐसा नहीं है. सोशल इंटरेक्शन रहेगा, एसोसिएशन नहीं करना चाहिए. एसोसिएशन मीन्स गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय दैट. तो वी मस्ट एसोसिएट विद डिवोटीज एंड देयर कैरेक्टर शुड रब ऑफ ऑन अस. भक्तों के संग रह के भक्तों के कार्य में जैसे भक्त करते हैं हमें करना है, मस्ट बी इन्फ्लुएंस बाय देम. So we must, of course, interact in our society, because unless I talk to them, how will they know about Krishna? How will they know about temple? How will they know about sadhana, Prabhupada? उसके लिए मिलना जरूरी है. So the first business of a Vaishnava is to give up association of persons who are not devotees of Krishna, who are too attached to material things, wife, children, bank balance, so on. So Prahlad Maharaj also prays to personality of Godhead that he may avoid the association of non-devotees. तो महाजन ये ना गता से बनता, ये सब हमें महाजनों ने सिखाया है. वो भी वैसे मतलब वैसे जो व्हाट दे आर प्रैक्टिस दे आर टीचिंग टू अस. प्रहलाद महाराज भी भगवान से ये नरसिंह भगवान से ये वरदान मांग रहे कि मुझे असुरों के संग में मत रखो, जो अभक्त है आपका उसके संग मत रखो, वो सब मुझसे दूर रहे. So Vaishnava is known by his complete avoidance of all mundane association. जितना वो लोक प्रवृत्ति वाले लोगों से मिलता जुलता रहेगा. सो शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू योर फ्यूचर. एक कहावत है, मुझे आप अपने मित्रों को दिखाइए, मैं आपका भविष्य बोल दूंगा. सिमिलरली इफ यू आर ऑलवेज विथ डिवोटीज, देन वी विल ऑलवेज बी in the devotional mode. So in the next 30 seconds, we'll get logged off. After that, please log in again. Another 10 minutes session is there, we'll complete it. So Vaishnava should strictly avoid those who are not interested in hearing about Krishna. जो कृष्ण कथा में रुचि नहीं रखता है, उसका संग को हमें त्यागना है. We must not associate with such people. So one lives in association with of devotees. There is little chance of associating with non-devotees. भक्तों के संग में हम रहेंगे तो भक्तों के संग का जो रुचि है, higher taste, it will make us give up the lower taste of
बीइंग विथ मेटलिस्टिक पीपल। तो ये जो इस्कॉन संस्था है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैंने क्यों